ناظرین، آج ہم سادو کہانی کے لاسٹ پارٹ 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جمال ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹا اور قبر سے ٹکرا گیا۔ دوسرے لمحے قبر غائب ہو گئی۔ جمال کو پھر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ او کم بخت، جلدی سے موتی میرے حوالے کر دے ورنہ خون پی جاؤں گا۔ تمہارا ڈانچہ اس کی طرف بڑھتا ہوا گرایا۔ مگر تم ہو کون؟ جمال خوف سے لرزتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ مہاراج ہری رام کا غلام گپتا سنگھ، ڈانچہ خوفناک لہجے میں بولا۔ یہ سنتے ہی سارا چکر جمال کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے ایک جلتا ہوا چراغ اٹھایا اور ڈانچے پر پھینک دیا۔ فوراً ہی ڈانچے کے لباس میں آگ لگ گئی اور وہ بری طرح جلتا ہوا جھونپڑے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس سے گاس نے آگ پکڑ لی اور جھونپڑا بھی جلنے لگا۔ جمال نے تیزی سے دروازے کی طرف چھلانگ لگائی اور باہر نکل آیا۔ باہر آتے ہی اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ بچاؤ مہاراج، میں جل رہا ہوں، بچاؤ مہاراج! اندر جلتا ہوا ڈانچہ چیخنے لگا۔ آن کی آن میں جھونپڑا جل کر راکھ ہو گیا۔ اس کی راکھ سے دھوئیں کی ایک لکیر سی اٹھی اور بلند ہوتی ہوئی درختوں کی شاخوں میں غائب ہو گئی۔ جمال خان نے خدا کا شکر ادا کیا، اس بار پھر ہری رام کے وار سے بچ گیا۔ اگر وہ فریم میں آ کر تویز بازو سے الگ کر دیتا تو نہ جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر وہاں سے چل دیا۔ ٹارچ کی روشنی میں چلتے چلتے ایک تالاب کے پاس پہنچا۔ اس تالاب کے پانی سے عجیب سی روشنی پھوٹ رہی تھی اور ایک انتہائی خوبصورت اور نوجوان لڑکی اس میں نہا رہی تھی۔ اس کا ریشمی لباس کنارے پر رکھا تھا۔ جمال کو حیرت ہوئی کہ اس خوفناک جنگل میں رات کے وقت ایک نوجوان اور تنہا لڑکی کہاں سے نہانے آ گئی۔ اچانک لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور شرما کر پانی میں گردن تک چھپ گئی۔ خوبصورت لڑکی کی ایک ہی جھلک نے جمال خان جیسے بلند کردار اور نیک دل نوجوان کے اندر چنگیاریاں سی بھر دی۔ او بے حیا، دیکھتا کیا ہے؟ ٹارچ بجھا دے، کہیں میرا باپ نہ مجھے دیکھ لے، لڑکی نے گسیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو یہی سمجھے گا کہ میں نے تجھے بلایا ہے یہاں۔ جمال خان نے فوراً ٹارچ بجھا دی اور بولا، تم کون ہو؟ تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں رانی ہوں، وہ تالاب کی طرف تیرتی ہوئی بولی۔ پانی سے نکلنے والی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن پانی کے اندر تاریکی تھی، اس لیے گردن سے نیچے کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا باپ مہاراج ہری رام کو کھانا پہنچانے گیا ہے، 1 گھنٹے بعد لوٹے گا۔ وہ تالاب کے کنارے آئی، پھر بولی، لے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکال۔ جمال اس کی فرمائش پر پہلے تو سٹپٹا گیا کیونکہ وہ برہنہ تن باہر آنا چاہتی تھی، مگر پھر اچانک اسے سونی پت کی روح نظر آ گئی جو خوبصورت اور برہنہ تن لڑکی کی شکل میں اسے دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ نہیں، تم برہنہ ہو، مجھے شرم آتی ہے، جمال نے کچھ سوچ کر کہا۔ اچھا، میرا لباس مجھے اٹھا کر دو، رانی نے ہنس کر کہا۔ جمال پلٹ کر اس کے لباس کی طرف بڑھا، لیکن وہ جگہ خالی دکھائی دی، لباس اپنی جگہ سے غائب تھا، حالانکہ چند منٹ پہلے اس نے وہاں خود دیکھا تھا۔ لباس تو یہاں نہیں ہے رانی، اس نے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پلٹ کر رانی کی طرف دیکھا تو رانی تالاب میں گوتے کھا رہی تھی اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ پانی پر اس کے صرف بال دکھائی دے رہے تھے۔ اسے ڈوبتا دیکھ کر جمال گھبرا گیا اور فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ رانی کو بچانے کے لیے اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی اور تالاب میں چھلانگ لگا دی، مگر دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ پانی کی بجائے زمین پر آ گرا ہو۔ اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ادھر ادھر دیکھا، تالاب غائب تھا اور وہ زمین پر منہ کے بال پڑا تھا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے کروٹ لی اور سیدھا ہو کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک بائیں جانب سے ایک درخت جڑ سے اکھڑ کر اس کے اوپر آ گرا۔ جمال خان کی درد کی شدت سے چیخ نکل گئی۔ درخت کی وزنی شاخیں اس پر پڑی تھی، اس کے نیچے اس کی ٹانگیں دبی ہوئی تھی۔ وہ کرہتا ہوا اپنی ٹانگیں نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ اسی لمحے آس پاس سے عجیب سا شور بلند ہونے لگا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے لوگ اس کی بے بسی پر ہنس رہے ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو چاروں طرف بہت سی چمکدار آنکھیں حرکت کرتی ہوئی دکھائی دی۔ یقیناً وہ بدروحیں تھی۔ وہ سہم گیا، بدروحیں ہنس رہی تھی، مگر پھر اچانک وہاں روشنی پھیل گئی۔ وہ روشنی اوپر سے آ رہی تھی۔ جمال نے اوپر کی طرف دیکھا تو دہشت کے مارے اس کی رگوں سے خون جمنے لگا۔ 10-12 فٹ کی بلندی پر ایک انسانی کھوپڑی معلق تھی جس کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کئی انسانی ڈھانچے اس کے گرد گھیرا ڈالے ہنس رہے تھے۔ جمال خان، اب تم ہمارے قابو میں آئے ہو، فضا میں معلق کھوپڑی سے آواز آئی۔ تم کون ہو؟ جمال نے کھوپڑی کی طرف
देख कर खौफजदा लहजे में पूछा, मैं महाराज हरी राम का अदना गुलाम गोपाल दास हूँ। ये तमाम बदरूहें भी इसकी गुलाम हैं और ये सब तुम्हारा खून चखने के लिए बेताब हैं। अच्छा तो तुम इस शैतान साधु के गुलाम हो। जमाल को एकदम गुस्सा आ गया। बकवास मत करो, महाराज की शान में गुस्ताखी करोगे तो जुबान काट दूंगा। गोपाल दास की खोपड़ी गुराई। जिंदगी चाहते हो तो अपने बाजू पर बंधा प्रेम लाल का मोती उतार फेंको। पहले इस दरख्त को हटाओ, फिर मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जमाल खान ने घसीले लहजे में कहा, चलो दरख्त को हटाओ। खोपड़ी ने डांचों से कहा। इस पर तमाम डांचे मिलकर दरख्त को एक तरफ खींचने लगे। जमाल खान बोझ हटते ही तेजी से खड़ा हो गया। जमाल खान, अब मोती उतार फेंको, जल्दी करो। गोपाल दास की खोपड़ी से आवाज आई। जमाल ने फौरन चाकू खोला और बोला, अब मैं तुम सबको खत्म कर डालूंगा शैतान के चेलो। वो डांचों की तरफ दौड़ा और एक डांचे का बाजू लिया। फौरन ही डांचा चीखा और इसका जिस्म खुशक लकड़ी की मंद जलने लगा। ये देखकर बाकी डांचे चीखते हुए भागे और अंधेरे में गायब हो गए। जमाल ने फौरन चाकू खोपड़ी पर खींच मारा, मगर वो एकदम गायब हो गई। हरी राम परेशानी के आलम में झोंपड़े के बाहर टहर रहा था। अचानक इसके सामने गोपाल दास की खोपड़ी नमूदार हुई और वो इसकी तरफ देखने लगा। महाराज, जमाल खान को खत्म करना हमारे बस से बाहर है। गोपाल दास की खोपड़ी ने मौतबाना लहजे में कहा, हमारी कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकी जब तक इसके जिस्म पर प्रेमलाल का मोती मौजूद है। हम इसे छू भी नहीं सकते। अच्छा, इसका मतलब है मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा। हरी राम ने गजबनाक होकर कहा, हाँ महाराज, आपके सिवा कोई कुव्वत इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो भी इसके जिस्म से छुएगा जल जाएगा। हरी राम ने झोंपड़े के दरवाजे में खड़े डांचे की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा, मक्खन लाल, राधा को बेहोश करके यहाँ लाओ। मक्खन लाल डांचे की आंखों से सफेद धुएं की लहर निकलकर राधा के चेहरे से टकराई और इस पर बेहोशी तारी होती चली गई। तब वो पलटकर हरी राम के सामने आ गया। हरी राम मुंह ही मुंह में एक मंत्र पढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद इसने डांचे पर फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे डांचा गोश्त का जिंदा इंसान बन गया, जिसके बदन पर देहाती तर्ज का लिबास नजर आ रहा था। शक्ल से वो मुअज़्ज़ज़ आदमी लग रहा था। गोपाल दास, मेरी हदायत गौर से सुन लो। अब तुम नाकाम लौटे तो हमेशा के लिए फना कर डालूंगा तुम्हें। हरी राम ने सख्त लहजे में कहा। फिर इसने चंद हदायत दी और गोपाल दास वहां से एक तरफ चल दिया। इसके जाने के बाद हरी राम ने खुद पर एक मंत्र फूंका। फौरन ही रोशनी का एक धमाका हुआ और वो अपनी जगह से गायब हो गया। इधर जमाल खान परेशानी के आलम में गिरे हुए दरख्त के तने पर बैठा सोच रहा था कि साधु हरी राम के ठिकाने तक कैसे पहुंचे। भूख से इसका बुरा हाल था, मगर वहां इसे कोई फलदार दरख्त भी नजर न आया था कि वो फल खाकर पेट भरता। चंद मिनट ही गुजरे थे कि इसे किसी के कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। इसने जल्दी से टार्च रोशन करके इस तरफ रोशनी डाली तो चौंक पड़ा। इस तरफ से एक आदमी कंधे पर एक टोकरी रखे चला आ रहा था। जमाल खान को हैरत हुई कि वो आदमी रात के वक्त जंगल में क्या करने आया है। चचा, जरा बात सुनना। इसने टोकरी वाले को आवाज दी जो बाएं तरफ जा रहा था। इस आदमी ने पलटकर इसकी तरफ देखा और हैरत से बोला, तुम कौन हो और इतने खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ चाचा, कहाँ से आ रहे हो और टोकरी में क्या है? जमाल ने कहा, मैं करीबी गांव से आया था और केले तोड़कर ले जा रहा हूँ। सुबह गांव में बेचूंगा। क्या तुम्हें चाहिए? हाँ, मुझे शदीद भूख लगी है। अगर तुम कीमत लेना चाहो तो ले लो और चंद केले दे दो। अरे नहीं बेटा, परदेसियों से क्या कीमत लेना। इसने टोकरा जमीन पर रखते हुए कहा। फिर इसने टोकरे से चंद केले निकालकर जमाल खान की गोद में डाल दिए। जमाल खान ने इसका शुक्रिया अदा किया और जल्दी से एक केला छीलकर खाने लगा, लेकिन अभी आधा केला ही खाया था कि इसका सर चकराने लगा और केला हाथ से गिर गया। चचा, मेरा सर घूम रहा है। ये कैसा केला है? इसने दोनों हाथों में सर थाम कर पूछा। ये तो बड़े मजेदार केले हैं, इन्हें खाने से बड़ी प्यारी नींद आती है जमाल खान। इस आदमी ने हंसकर कहा, मगर इसकी आवाज बदली हुई थी। इसकी बदली हुई आवाज सुनकर जमाल खान के डूबते हुए ज़हन में गोपाल दास की खोपड़ी का ख्याल आया, मगर दूसरे लम्हे इस पर बेहोशी तारी होती चली गई। वो आदमी जो गोपाल दास ही था, इसे बेहोश देकर हंसने लगा। अब काबू में आए हो ना कम वक्त। फिर इसने बुलंद आवाज से पुकारा, महाराज, जमाल बेहोश हो चुका है। इसकी आवाज सुनकर करीबी दरख्त पर बैठा एक उल्लू चीखने लगा। फौरन इधर उधर से कई बंदर, लंगूर, लोमड़ियां और गीदड़ दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे और जमाल खान के गिर्द घेरा डालकर खुशी से चलाने लगे। चंद लम्हे गुजरे थे कि एक चमकता हुआ सितारा इनके करीब जमीन पर उतरा और इस सितारे से साधु हरी राम नमूदार हो गया। सितारा एकदम गायब हो गया
गोपाल दास और तमाम जानवर एकदम खामोश हो गए। अच्छा, तो ये है वो पापी जो मुझसे टक्कर लेने आया है। हरी राम ने जमाल खान की तरफ देखते हुए नफरत से कहा, हाँ महाराज, आपकी बताई हुई तरकीब कामयाब रही, ये बेहोश पड़ा है। हरी राम ने एक मंत्र पढ़कर जमाल खान की तरफ फूंका। फौरन ही आग का शोला नमूदार होकर जमाल खान के जिस्म से टकराया और बुझ गया। जमाल खान पर आग का कोई असर न हुआ था। हरी राम समझ गया कि जमाल खान के बाजू पर बंधे मोती के सबब इस पर जादू का असर नहीं हुआ। वो आगे बढ़ा और जमाल खान के बाजू पर बंधा मोती खोलने लगा। इसी लम्हे जमाल खान के बाजू में शदीद चुभन हुई और इससे होश आ गया। इसने हरी राम को मोती खोलते देखा तो तेजी से इसके मुंह पर गूंसा रसीद करता हुआ खड़ा हो गया। मुक्का खाकर हरी राम करहाता हुआ पीछे जा गिरा। जमाल खान ने फौरन चाकू निकालकर हाथ में ले लिया। फिर गोपाल दास की तरफ देखकर बोला, गोपाल दास, तुमने मुझे फ्रेब से बेहोश किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही वो गोपाल दास की तरफ दौड़ा और गोपाल दास चीखता हुआ भाग उठा। वहां मौजूद तमाम जानवर भी चीखते चलाते भागे और अंधेरे में गायब हो गए। इसी लम्हे हरी राम ने संभल कर जमाल खान की तरफ फूंक मारी। दूसरे ही लम्हे जमाल खान के पैरों तले एक गड़ा पैदा हुआ और वो इसमें गिर गया, लेकिन फौरन ही गड़ा गायब हो गया और जमाल संभल कर खड़ा हो गया। ओ शैतान के बच्चे, तेरी मकरूज शक्ल से लगता है कि तू ही हरी राम है। वो हरी राम को घूरता हुआ बोला, बोल राधा कहाँ है, जल्दी से इसे मेरे हवाले कर। राधा, एक शर्त पर तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ। हरी राम ने यारी अख्तियार की। बोल, मैं तेरी हर शर्त पूरी करने पर तैयार हूँ। जमाल खान ने तेजी से कहा, अपने बाजू पर बंधा मोती मेरे हवाले कर दो, मैं राधा तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे राधा दिखा, क्या पता तुमने इसे हलाक कर दिया हो। जमाल खान ने सर हिला दिया। अच्छा, मेरे साथ आओ, हरी राम ने कहा और एक तरफ बढ़ने लगा। जमाल खान टार्च जलाकर इसके पीछे चल दिया। तकरीबन आधे घंटे का फासला तय करके वो दोनों झोंपड़े के करीब पहुंचे। झोंपड़े के बाहर राधा का बाप बिहारी लाल खड़ा था। इसे देखकर जमाल को हैरत हुई। पंडित जी, आप यहाँ कैसे, कब आए? जमाल ने पूछा। अभी अभी आया हूँ, राधा अंदर बेहोश पड़ी है, बिहारी लाल ने बताया। फिर इसने हरी राम से घसीले लहजे में कहा, हरी राम, तुमने मुझसे धोखा किया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे माफ कर दो। बिहारी लाल, तुम अपनी बेटी को ले जा सकते हो, हरी राम ने शर्मिंदा होकर कहा। बिहारी लाल झोंपड़े में गया और राधा को कंधे पर डालकर बाहर आ गया। इसने जमाल खान से कहा, आओ जमाल, वापिस चले। जमाल खान, अब तुम मोती मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मैंने राधा को वापिस कर दिया है। हरी राम ने जमाल से कहा, हाँ जमाल खान, मैंने हरी राम को माफ कर दिया है, तुम मोती इसे दे दो, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं रही। बिहारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा। जमाल खान ने बाजू से मोती खोलकर बिहारी लाल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, पंडित जी, ये आप खुद इसके हवाले करें। नहीं नहीं, बिहारी लाल घबराकर पीछे हटता हुआ बोला, तुम खुद इसके हाथ में दे दो। लेकिन इसने राधा मेरे हवाले नहीं, आपके हवाले की है, इसलिए आप ही मोती इसे दें। जमाल हंसता हुआ बोला, बिहारी लाल, तुम राधा जमाल के हवाले कर दो ताकि इसकी शर्त पूरी हो जाए। हरी राम ने तेजी से कहा, लो इसे तुम उठा लो। बिहारी लाल ने राधा का जिस्म दोनों हाथों पर रखकर जमाल की तरफ बढ़ाया। जमाल ने राधा को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो इसके हाथ बिहारी लाल की कलाई से छू के दूसरे ही लम्हे बिहारी लाल के मुंह से कर्बनाक चीख खारिज हुई और राधा इसके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर गई। गिरते ही इसकी आंख खुल गई। जमाल हैरत से बिहारी लाल की तरफ देख रहा था, जिसके बदन से गोश्त उड़ता जा रहा था और वो चीख रहा था। आन की आन में वो ढांचे में तब्दील हो गया। फिर इसके पिंजर में आग लग गई और वो बुरी तरह जलने लगा। इसी लम्हे हरी राम ने झपटा मारकर जमाल के हाथ से मोती छीनना चाहा, मगर कामयाब ना हो सका। जमाल ने फौरन ही पलटकर इसके मुंह पर घूंसा रसीद किया और वो करहाता हुआ जमीन पर जा गिरा। जमाल ने तेजी से अपना चाकू संभालकर इस पर छलांग लगाई और चाकू हरी राम के सीने में पेवस्त कर दिया। हरी राम के मुंह से खौफनाक सी चीख निकली और वो चंद लम्हे तड़पने के बाद हमेशा के लिए सख्त हो गया। राधा जल्दी से उठकर जमाल से लिपट गई और मसरत से रोने लगी। जमाल बोला, मुझे तुम्हारे बाप के जलने का अफसोस है, ये मेरा बाप नहीं मक्खन लाल है, हरी राम का गुलाम ढांचा। राधा ने ढांचे की तरफ देखकर कहा, जो जलकर राख हो चुका था। जमाल ने इसकी बात सुनकर इत्मीनान का सांस लिया और राधा का हाथ पकड़े वापिस चल दिया। कुछ दूर जाकर वो बैठ गए और सुबह होने का इंतजार करने लगे। जल्दी सुबह हो गई और वो उठकर चल दिए। दिन के उजाले में वो जंगल से बाहर आए और इत्मीनान से करीबी गांव की तरफ बढ़ गए। इस तरह जमाल खान ने अपनी महबूबा को जादू करके चुंगल से बचा लिया।
اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔